Hello dear students, how are you? Today we are going to learn a topic under chapter biodiversity and conservation. Today's topic is loss of biodiversity. Loss of biodiversity. You know that students, our biodiversity loss is continuous nowadays, but their rate is also faster due to anthropogenic action and many other. You know that since past our earth is treasury of different group of animals as well as plants. Not only plants and animals, besides many other species belong to the various phyla, various categories, various kingdoms. You know well the number of species till date is reported, you also know this. But in recent the species extinction is more faster, and it is not said by me, it is said by IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resource. IUCN published a book is known as Red Data Book. According to IUCN 2004, and published a book is called Red Data Book. In Red Data Book it lists all those species which are endangered, critically endangered, and the species which are going to extinct. The Red Data Book also give information of all these categories of animals. Now the earth, you know that the collection of different species, and you know that the different species formed by speciation, new species formed by speciation over passing times. I have already explained this theory, these things in previous classes. Not previous part of this chapter. The main reason behind the extinction of species, one question is asked, how the extinction of species happen, you clearly point out that the main cause of extinction of species is only human. And you know that the human consuming more and more natural resource, and also consume the resource of those animals that are only made for them, but due to need that nowadays changes into the greed, that greeds make more exploitation of natural resource. That's why the animal continuously facing too much problems, Students, according to data of IUCN 2004, more than data of IUCN, more than 2000 birds extinct from the 2000 bird extinct from the Pacific Islands. देखिए ये सब डेटा स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब डेटा पूछना नहीं जाता है एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको एक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है. अगर IUCN रेड डेटा बुक का रिपोर्ट देखें इन 2004, दे डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ अबाउट 784 extinct or animals of 784 species, and these are generally belongs in many categories.
in all 784, 338 is vertebrates. 338 is vertebrates, 359 is invertebrates, and the remaining 87 are plants that are extinct, and they are listed in the red data book. And these all species are extinct in last 500 years. Means in last 500 years, according to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resource, 784 species extinct, out of which 338 is vertebrates, 359 is invertebrate, and 87 are plants. Beside this, many other species that belongs to many other categories are also extinct, that are not counted by red data book. Students, among all these species, some examples of recent extinctions. Are dodo. You are familiar with dodo. It is called Mauritius. Dodo. Second one is a quagga. These are also given in NCERT. You can learn, students. This is given at page number 263. Quagga. This is from Africa. Thylacine. This is from Africa. This is also animal. Thylacine. It is an animal from Australia. It is called marsupials, carnivorous marsupials. Australia. Thylacine is a carnivorous marsupials. The fourth one is a stellar sea cow. Now they are extinct from Russia due to overexploitation, and some other species, three species of tiger from Java, Caspian and Bali. Java, Bali and Caspian region. Three species of tiger is also, three different species of tiger also extinct from this region, from Java, Bali and Caspians. So this one is a general information about the biodiversity loss. How the biodiversity loss happen. The loss of biodiversity, only four reasons behind this. First reason of loss of biodiversity is habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. Second is over-exploitation. Third is alien species extinction, alien species invasion. And fourth one is a co-extinction.
This all four regions nowadays is currently causes extinction. This is the four region. Now students, how these four region causes biodiversity loss? Let us see one by one. Beside this, some other line are also written in NCERT that some group like amphibians appear more vulnerable to the extinction. मतलब आने वाले समय में अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल ग्रुप पर सबसे ज़्यादा संकट आने वाला है तो वो एम्फीबियन ही है. एंड एम्फीबियन मेजॉरिटी ऑलमोस्ट ऑल एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन द कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबल. एंड वल्नरेबल इट मीन्स सेम एज लाइक endangered category. Endangered category. It is and that vulnerable species like amphibians currently needed to, because this is belong to the vulnerable category, so it is needed to care, support as well as protection. Care, support and protection. Currently एडिंग टू द ग्रीम सेनेरियो, अगर हम प्रेजेंट इस समय की अगर हम ग्रीम सेनेरियो यानी कि जो हम लोगों का हालत है, भयावह स्थिति है, अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो हमें पाएंगे कि मोर देन 15,500 स्पीसीज क्या है फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सपेंशन, फेसिंग थ्रेट ऑफ करंट सेनेरियो, फेसिंग थ्रेट of extinction, means they are under category of threatened. And you know that what is the threatened species? Those species who are facing problem for their survival, that species are called threatened species. Okay, and they are also facing facing threat of extinction. Presently, in all these 15,000 species, 12% of bird are also facing threat of extinction. 12% of the bird, 23% of the mammal are also facing this condition. Because due to over exploitation, you can see in almost all country के अगर diet को focus किया जाए, including China, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज का अलग अलग एनिमल क्या है फूड है. जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में चिकन, मटन, बीफ, pork and many other type of flesh generally are eaten. And what is the main effect of this? अगर हम इतने ही तेजी से इसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाएंगे बिना रेयर किए तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक समय के बाद क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने लगेगा. अगर आज हम गोट की रेयरिंग को नहीं बढ़ाते तो शायद आने वाले ही समय में कुछ गोट्स क्या होता है, क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं. लेकिन हमारे लिए बेनिफिट है कि हम पोल्ट्री और जो गोट फार्मिंग है ये सब चीज़ों को, एनिमल कैटल है, कैटल रियरिंग है, इन सबको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो करेंटली इन ऑल प्रेजेंट सिनेरियो में कि जो 15,500 स्पीसीज है इसमें से 12% बर्ड, 23% ऑफ मैमल, 32% ऑफ एम्फीबियन. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एम्फीबियन इज इन मोर वल्नरेबल कैटेगरी. 32% ऑफ एम्फीबियंस एंड 31% of gymnosperm. Gymnosperms are moving toward threatened category, means they are threat to extinction. Means currently they are suffer. Means all these
जो हम कह सकते हैं 15,500 स्पीसीज जो हैं आज क्या है, अपने को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब ये क्या समझ रहे हैं आप, क्या इस चीज़ को मान रहे हैं, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं आप। और आने वाले समय में अगर हम लोग अपने रेट ऑफ बॉडी का जो हम लोग बॉडी का नहीं, जो हम अपनी नीड को नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो कंजप्शंस है उसको कम नहीं किए तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में हम लोग और भी क्रिटिकल सिचुएशन से क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। तो ये है क्या, हमारा एक थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इसी को और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगर हम मास एक्सटिंक्शन की बात करें, किसकी, मास एक्सटिंक्शन। mass extinction. We are continuously moving for 6th episode of extinction and हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम इस अर्थ पे मौजूद हर तरह के एनिमल को एक्सटिंक्ट करा देंगे तो हम लोग भी एट लास्ट नहीं बचेंगे। और हम लोग, कहा जाता है कि अपनी कब्र खुद खोदना, तो हम लोग खोद ही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बुक एंड अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ IUCN, इट इज सेड दैट द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन करेंटली 100 times से, you can say 100 times to 1000 times faster for 6th episode of extinction, and the main in organism that delete in the 6th episode is mammals, and including in mammals are human. Previous this 5 episodes of lives already finished over origin of life on earth. You know that life on earth first come on 3 billion year ago. What? 3 billion year ago. And in this all durations, 5 episodes of life are deleted continuously. And this all 5 episode of life, कभी reptiles delete हुआ, तो कभी देख सकते हैं टेरिडोफाइट्स डिलीट हुए, कभी ब्रायोफाइट्स डिलीट हुए, कभी कुछ बर्ड्स का डिलीशन हुआ, बर्ड्स तो अभी फिलहाल नहीं, जिम्नोस्पर्म का डिलीशन हुआ। इस वजह से अलग अलग एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है, हो चुका है अंडर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अंडर डिफरेंट पीरियड्स। कभी एनिमल्स की इतनी अधिकता थी कि पूरे अर्थ पे कभी टेरिडोफाइट्स थे, कभी रेप्टाइल्स थे, लेकिन सोचिए कि ये एक रेप्टाइल्स जितनी बड़े नंबर्स में थे, आज वो रेप्टाइल्स क्या हैं, एक्सटिंक्शन की कैटेगरीज में है। और आज वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एक्सटिंक्शन की कैटेगरीज में है। और आज जो है करंट सिनेरियो में एक तरफ मैमल की अधिकता है, मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म की अधिकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक टिकेंगे। ये क्या है, विद इन दिस सेंचुरी जो आप स्टूडेंट पढ़ रहे हो सकता है आप लोग भी एट लास्ट एक्सटिंक्शन को देख लें, एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ को देखें। क्यों? क्योंकि इसका अगर एक्सटिंक्शन 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन हो रहा है तो उसका रीज़न, उसका काज सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, यानी मैन मेड एक्टिविटी है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो सबसे पहले इसी चीज़ को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक डायग्राम से पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग को हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन अगर हम देखें तो आप ये जान रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या है। हम हेडिंग अब पढ़ने जा रहे हैं काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, अंडर दैट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, द फर्स्ट हेडिंग। एंड यू नो दैट द हैबिटेट लॉस एंड इट्स फ्रेगमेंटेशन को हम एक डायग्राम से पढ़ते हैं। जैसे ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक एरिया है एंड इन दिस एरिया एक रिवर पास कर रही है। जनरली ओल्ड टाइम में सारे बड़े शहर
रिवर और सी के किनारे ही इस्टेब्लिश हुए। मान लीजिए इस किनारे पे एक क्या है, एक कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रही है। अभी तक इस पानी में रहने वाले और आसपास के रहने वाले जीवों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं है, लेकिन एक कॉलोनी बढ़ती चली गई। एक कॉलोनी यहाँ से अलग होकर यहाँ घर बना लिया, फिर एक कही नहीं मैं इधर नहीं रहूँगा, मैं इधर रहूँगा, इधर आ गया। फिर एक कहा मैं अब नदी किनारे नहीं रहूँगा, यहाँ रहूँगा। फिर एक कहा यहाँ रहूँगा। तो जो एनिमल्स यहाँ रहूँगा, जो एनिमल यहाँ था, अब इसके ऊपर संकट आया तो ये मूव करके यहाँ गया। फिर यहाँ संकट आया, मूव करके कहाँ जाए, ये प्रॉब्लम। ओके ओके, तो यहाँ पे एक एनिमल की शिफ्टिंग हो गई दूसरे डायरेक्शन में, फिर यहाँ भी कॉलोनाइजेशन हो गया, यहाँ शिफ्टिंग हुई, और एक समय के बाद ये जो कॉलोनाइजेशन है धीरे धीरे उस एनिमल के लिए क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। और एनिमल कहाँ जाए, एनिमल या तो इस एरिया को छोड़े या तो यहीं पे अपना दम तोड़े, बात वही। तो ये चीज़ है यहाँ पर था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसका नाम है अमेजन। अमेजन को लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट या अमेजन सीधे बोल सकते हैं। ये इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत बड़े, साउथ अमेरिका में बहुत बड़े एरिया को क्या करता है, कवर करता है, और कवर करके कई कंट्री को कवर करता है, और बहुत लंबा चौड़ा एरिया पे ट्रीज है, और लगभग में ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑफ अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ये बोला जाता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। तो कभी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से 40% एरिया कवर रहता था, लेकिन आज ये घट के 6% हो गया है। हो सकता है, एनसीईआरटी एक लाइन में लिखा है कि हो सकता है जब तक आप बुक पढ़ रहे हो, पढ़ेंगे, यानी कि इन 2006 इट इज रिटेन, जब तक ये बुक आप पढ़ रहे हैं तब तक लगभग में मोर देन 1000 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट आल्सो डिग्रेडेड। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का रेशियो क्या है। ये तो पहले का था, जो 40% ऑफ रेन फॉरेस्ट कवर था वो आज 6% पे हो गया है। मतलब ये कहाँ हम मूव कर रहे हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर अमेजन की बात करें जो लंग्स ऑफ प्लेनेट है, उस अमेजन के कुछ एरियाज को इस नाते क्लियर कर दिया गया, काट के हटा दिया गया, झूम कल्टीवेशन या जो भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, ऐसा कर दिया गया कि वहाँ एक सोयाबीन की खेती होने लगी। और सोयाबीन इस नाते उगाया जाने लगा क्योंकि उस एरिया में लोगों को एक बीफ कैटल को क्या करना था, रियर करना था फॉर द फ्लैश, ताकि इसके फ्लैश को खा सके। सोचिए, फॉरेस्ट को कट करना, सोयाबीन लगाना ताकि इसकी रियरिंग हो सके, ग्रासलैंड बनाना ताकि इसकी रियरिंग हो सके, ये सब था। सोचिए a human how they are advanced and how much they are think। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। इस चीज़ में इतना ही दिया हुआ है। फिर दूसरा बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में तो कुछ समझाना ही नहीं है। अगर आप ही को मौका मिल जाए कि पूरा इस कुसमी जंगल का फॉरेस्ट काट दो और फर्नीचर बना लो घर का, तो काट डालेंगे, यही ना, यही ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकेंड इज अ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब किसी इंसान की नीड चेंज होती है, किसमें, ग्रिड में, तो वहां पर क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ये ह्यूमन ही ये भूल जाता है, इतना माइंड कैपेसिटी रखने के बावजूद भी, कि जो रिसोर्स बना है इट इज नॉट ओनली फॉर देम, इट इज फॉर ऑल एनिमल्स एज वेल एज ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम कंटिन्यूअसली इसको एक्सप्लॉयट करेंगे तो एक समय के बाद एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स इतना
एक्सटिंक्शन ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाएगा। यानी वह रिसोर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अगर फूड है तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, critically endangered and changes into the extinct species। तो ये चीज़ है बच्चे। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम जान रहे हैं कि ह्यूमन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेचर फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ, नीड टर्न, जब नीड टर्न इनटू द ग्रिड फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे हम जानते हैं कि पहले के समय में स्टेलर काऊ, जो स्टेलर काऊ का एग्जाम्पल है वो इसी वजह से डिलीट हुआ है। डिमांड बढ़ी स्टेलर्स काऊ की, एक पानी में रहने वाली काऊ जो रसिया का मेन एनिमल है कह सकते हैं, या फिर जो पैसेंजर पीजन, पहले देखते हैं पीजन को क्या कर दिए, पैसेंजर पीजन, आज क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। पैसेंजर पीजन, लोग पुराने समय में चूंकि टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, ऐसा नहीं था, दे यूज पीजन फॉर the sending message and they make animals, human make them pet। उसको पिंजरे में रखते थे, मैसेज भेजने के लिए यूज करते थे। पिंजरे में रखने की वजह से उसमें कोई नेचुरल ब्रीडिंग नहीं हुई, नया ऑफस्प्रिंग नहीं बना और उसके रेसेस ही क्या होने लगे, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने लगे। तो आज भी पैसेंजर पिजन क्या है, पिजन की एक अलग कैटेगरी है, ये क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये चीजें हैं। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। और ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन लास्ट 500 years, presently many marine fish in all over the world are harvested very rapidly। अब देखते हैं कि आज हम लोग के जोन में चूंकि फिश की इतनी कंजप्शंस है कि सप्लाई करने के लिए मतलब सी फिशेस आते हैं, मैराइन फिशेस, और इतना एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया इन फिशेस का, इंक्लूडिंग नॉट ओनली फॉर ईटिंग पर्पजेज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी अदर प्रोडक्ट्स, कि वो कंटिन्यूअस हार्वेस्ट हो रही है। मतलब जाहिर सी बात है एक समय के बाद वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस क्वेश्चन पूछता है, मेनी टाइम द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस पोर्शन, फ्रॉम दिस पोर्शन। एलियन नाम इंडिकेट कर रहा है, एलियन इट इज अ बाहरी, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, alien species invasion, and according to alien species invasion, many species which are enter in our community, in our area, in our country, and they reproduce enormously and cover entire area, and that's why due to the enormous reproduction, enormous spreading of this species, the survival of other species is problematic. So this one is also important alien species invasion. Alien species, especially when any alien means Bahari species introduced in unintentionally in our country, our area, some of them are called invasive species and causes decline of extinction of indigenous species. It decline the extinction of indigenous species, जैसे कोई एक इन्वेसिव स्पीसीज और उस इन्वेसिव स्पीसीज से किसको हार्म हुआ है, इन्वेसिव स्पीसीज की बात करें, जैसे सबसे पहला इन्वेसिव स्पीसीज नाइल पर्च का बात करते हैं। नाइल पर्च, और इस नाइल पर्च के आने से एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुआ है, उस स्पीसीज का नाम है सिक्लिड, एंड दिस स्पीसीज ये स्पीसीज किकलिड फिश है। नाइल पर्च के आने से इस स्पीसीज का क्या हो गया है, एक्सटिंक्शन हो गया है। एक्सटिंक्शन कह सकते हैं, मतलब इस डिक्लाइन हो गया, इस स्पीसीज की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और डिक्लाइन की तरफ है। ओके, विक्टोरिया लेक में क्या हो गया, इसको ऐड किया गया था विक्टोरिया लेक में।
दूसरा जो स्पीसीज है आप जानते हैं कैरेट ग्रास, एक तरह का वीड है, ये कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, इसको पार्थिनियम बोलते हैं साइंटिफिकली। ये जब आ जाता है किसी एरिया में बहुत लंबे चौड़े एरिया को कवर कर लेता है, यानी कि जितने भी हर्बीवोर्स या हर्ब प्लांट है, श्रब प्लांट है, उसके लाइफ पर क्या हो जाता है प्रॉब्लम है, जहाँ भी आता है वहाँ फैल जाता है पूरा। आज भी रोड ट्रैक स्पेशली ट्रेन ट्रैक के किनारे बड़े पैमाने पर कैरेट ग्रास आप देख सकते हैं। तीसरा आइकॉर्निया, आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में आप नाम सुना ही होगा, जलकुंभी बोलते हैं। ये भी जब पॉन्ड में आता है तो बहुत सारे अदर पॉन्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग एनिमल्स एज वेल एज प्लांट के ऊपर क्या हो जाता है प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये पॉन्ड के पूरा सतह को क्या कर लेता है कवर कर लेता है और सनलाइट उसके बॉटम तक पहुंच नहीं पाती, जिससे अदर एक्वाटिक प्लांट को सर्वाइव करने में क्या होती है प्रॉब्लम आने लगती है। लेंटाना एक वीड्स है, लेंटाना का बात करते हैं, लेंटाना इंडिका। ये लेंटाना भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है, जब ये आया एक हर्ब प्लांट है ये और श्रब है, श्रब, और आने से इसके पूरे का पूरा एक एरिया में कवर कर गया, जिसके वजह से अदर प्लांट पे क्या हो गया प्रॉब्लम आने लगा। एक अनदर स्पीसीज है अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश। उस कैटफिश का नाम है क्लेरियस गैरीपिनस, क्लेरियस गैरीपिनस। ये जब इन्वेजिव हुआ इंडिया में अफ्रीकन कैटफिश, तो इंडिजिनस जो क्लेरियस था, इंडिजिनस जो क्लेरियस मछली था, फिश था, उसके ऊपर प्रॉब्लम आया और फिर वह क्या हुआ दूसरे स्पीसीज को क्या करने लगा प्रॉब्लम करने लगा। ठीक है, तो ये जो था यानी कि अब इंडियन कैटफिश इंडिजिनस, रिमूव इंडिजिनस कैटफिश। अब बात करते हैं हम फोर्थ को एक्सटिंक्शन की। को एक्सटिंक्शन बहुत सारे स्पीसीज, मेनी स्पीसीज which are remove which are present in association, which are live in association। एसोसिएशन का मतलब कि वह कैसे एक दूसरे से सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, हेलोटिज्म में रहते हैं, कॉमेंसलिज्म में रहते हैं। अगर हम बात करें उन दोनों स्पीसीज में से अगर कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, तो बाय एक्सटिंक्शन ऑफ सिंगल स्पीसीज अनदर स्पीसीज इज आल्सो फेसिंग एक्सटिंक्शन। The best example of this type of extinction is wasp. Wasp, a pollinating insect that pollinate yucca plant. If yucca plant is extinct, then wasp facing too much problems. You can say if wasp is only insect which pollinate the pollination for yucca plant. If a wasp is extinct, then yucca plant facing extinction. This is a co-extinction. Two species live together. If one facing problem, the problem occur for the second species also. So this one is a overall loss of biodiversity. How we learn here the different data as well as causes of loss of biodiversity under different heading: habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction. Now I think student hope this is a third part of this chapter biodiversity and conservation, and one more part are also prepared today, and I think this chapter is going to finish right now. After this only two chapter is left, two chapter remain for the further further discussions. Now if any students, if you have any doubt regarding the chapters, any problems you are face, if any mistakes is written unfortunately on the board, you must told me, and you can ask me your questions in offline classes in the school. Thank you.